Prabhuji. I think. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Here, Prabhuji? Yeah. Yes, yes. So we had an emergency visit by His Holiness Loknath Swami Maharaj and Sri Krishna Chaitanya Swami Maharaj and many senior disciples of His Holiness Loknath Maharaj. Oh, Because Rup Raghunath Maharaj left his body yes, Prabhuji. and it was very surprising because in morning he gave Bhagavatam class and after Bhagavatam class he went to his room and devotees served him prasad. So he had an habit of taking prasad alone. So he said, devotees, I'll take prasad and come out. But when he didn't come out, devotees went in and they saw he was on his chair and his head was on the table and he left his body. So Oh, like morning, and in morning class he was mentioning the last statements where he summarized his class. He said, stop Koti Janma, become good devotee and go back to Vaikuntha. That's what his final words. So Loknath Swami Maharaj thought that it would be appropriate to do his final rites in Ujjain. So all devotees gathered here and we had this whole final rites. Many devotees, I mean, there were more than 300-400 devotees. We went to the Chakra Tirtha and whole place became like temple only. It was very nice ceremony. Loknath Swami Maharaj personally gave fire to Maharaj. And then evening we had Smriti Sabha, memorial for Maharaj. So morning all devotees departed. Today only. oh. I didn't know Maharaj was in Ujjain. Because it didn't mention. He was in Bhopal. He was Okay, in Bhopal. He left his body in Bhopal. Gopal. Okay. But Loknath Swami Maharaj said rites can be done in Ujjain. Ujjain. Oh, okay. Wonderful. ऐसे ऐसे भक्तों को शरीर छोड़ते देख के लगता है प्रभु जी कुछ उम्मीद है. Yeah. Uh, He spoke his Bhagavatam class. He gave his Bhagavatam class, went to his room. He left his body like on his chair. He left his body. And he was 82 years old. और उनका हैबिट था वो किसी भी मंदिर में जाते थे वो कुछ भी सामान मंगाते थे खुद अपनी जेब से पैसे निकाल के उसका पेमेंट करते थे चाहे मंदिर की गिफ्ट शॉप से कुछ लेना हो ही वुड पे एंड एवरी डे वो जो भगवान की दान पेटी होती है उसमें एवरी डे ही वुड पुट 500 रुपीज वेर एवर ही स्टेड इन एनी टेम्पल सो पक्का इन हिज प्रिंसिपल्स. Hare Krishna. Hare Krishna. So devotees have joined. Hare Krishna and Pranam dear devotees. So welcome everyone to our weekly sessions on Vaishnava etiquette by His Grace Krishna Kishore Prabhu. So it is a revision and also practical aspects also Prabhuji so nicely giving examples and also all the anecdotes Prabhuji is quoting from Guru Maharaj and other pastimes. So we can see the value, practical value of applying these principles in our daily life. So all of us, we heartily welcome Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Krishna Kishore Prabhu ki jai, Jagat Shri Prabhupada. Hare Hare Krishna. So last time हमने कहाँ तक चर्चा की थी बीच में गैप हो गया बीच में गैप हुआ नो गैप ओके That was last to last week. Last week okay. So last time we discussed dealing with influential people, dealing with Matajis, dealing with money, dealing with other groups. So all these things we discussed. और हमने कुछ पास्ट टाइम्स चैतन्य महाप्रभु के दिए थे जो डिवोटीज जिसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते थे पढ़ सकते थे सोच सकते थे तो ये पास्ट टाइम्स इन जो प्रिंसिपल्स हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी उसके ऊपर आधारित है
या वो प्रिंसिपल्स इन पास्ट टाइम के ऊपर आधारित है, बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु's लाइफ इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए डिवोटी। एक भक्त को कैसा होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से हम सीख सकते हैं। तो हमने कुछ वो एग्जाम्पल्स डिवोटीज को रिक्वेस्ट किया था पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वो क्या सीखे समझने के लिए, तो हम उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आनंद विलासिनी माता जी, आप पढ़ सकती हैं। Yes, Prabhuji, Hare Krishna, Dandavat Pranam. Passage 1. Dealing with opposite gender. One day, when the Lord was going to the temple of Yameshwar, a female singer began to sing in the Jagannath temple. She sang a Gurjari tune in a very sweet voice, and the subject was Jayadev Goswami's Gita. Hearing the song from a distance, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately became ecstatic. He did not know whether it was a man or a woman singing. As the Lord ran in ecstasy to meet the singer, Thorny had just picked his body. Govind ran very quickly behind the Lord, who did not feel any pain from the pricking of the thorn. Sri Chaitanya Mahaprabhu was running very rapidly, and the girl was only a short distance away. Just then Govind caught the Lord in his arms and cried, "It is a woman singing." As soon as he heard the word women, the Lord became externally conscious and turned back. "My dear Govind," he said, "you have saved my life. If I had touched the body of a woman, I would certainly have died. I shall never be able to repay my debt to you." Govind replied, "Lord Jagannath has saved you. I am insignificant." Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, "My dear Govind, you should stay with me always. There is danger anywhere and everywhere. Therefore, you should protect me very carefully." So what did we learn from this pastime? Anyone कोई शेयर करना चाहते हैं? क्या सीखे हम इस pastime से? Yes, मीनाक्षी माता जी. Hare Krishna Prabhuji. From the last line, as Chaitanya Mahaprabhu says that danger is anywhere and everywhere. So we always remain in an association of our devotees. So they keep on protecting us from all the dangers which are there in this world. Yes, important teaching. Actually, महाप्रभु के एक एक pastime से there can be ocean of teachings कि बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। इसमें से एक टीचिंग ये भी है कि कैसे अगर डिवोटीज के एसोसिएशन में रहते हैं तो हम बड़ी से बड़ी डेंजर से अपने आप को बचा सकते हैं। और क्या सीख सकते हैं हम यहाँ पर डीलिंग्स के बारे में हम क्या सीख सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने एक सेशन में गुरु महाराज का एक पास्ट टाइम डिस्कस किया था रिगार्डिंग हाउ टू डील विद माता जी और अपोजिट सेक्स। तो एक सेशन में महाराज वाज गिविंग सेशन, तो आफ्टर सेशन माता जी सेड कि आई वांटेड टू डिस्कस समथिंग इन पर्सन। तो गुरु महाराज सेड वी कैन डिस्कस हियर विद ऑल ओवर people or devotees, but माता जी was insisting, no, there is something I want to discuss in person. Then Guru Maharaj said okay. So then Guru Maharaj agreed, and then he met Mataji, but then he called one of his disciples also, and that too of different language. Mataji was from Bengali community, but yes, Guru Maharaj called Hindi guy, so that when Mataji is sharing something, so there is no conflict. The other guy doesn't get to the context. So that is one way. I mean, when we are also dealing with the, I mean, first of all, we should avoid if there is any Mataji's discussion, we should do it in group only. But if there is any such kind of situation, we can recall this example of Guru Maharaj, which you shared. yes, very appropriate, क्योंकि हमारी डीलिंग्स बहुत रिफाइन होनी चाहिए, बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और हर आश्रम की अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा को हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे मुझे एक बार छोटा सा पास टाइम याद आ रहा है। हम लोग एक बार एक टेंपल में थे और एक माता जी बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि गुरु महाराज उनके सिर पे हाथ रखें, और गुरु महाराज वॉज नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल कि पूरे मंदिर के सामने गुरु महाराज माता जी के सिर पे हाथ रखें। सो शी वॉज इंसिस्टिंग, गुरु महाराज सेड आई विल डू इट लेटर। तो ऐसे कह के गुरु महाराज चले गए। तो उन माता जी ने उसी दिन गुरु महाराज को ईमेल लिखा। उन्होंने बोला, गुरु महाराज आपके मैं डिसाइपल हूँ और आप मुझे ऐसे नेग्लेक्ट किए और आपने हाथ नहीं रखा मेरे सिर पे। तो गुरु महाराज रिप्लाइड, I did not place
hand on your head because you always stay in my heart. ऐसा जब रिप्लाई किया तो माता जी एकदम मेल्ट हो गई, उन्होंने फिर एकदम अच्छा सा एक रिप्लाई किया. सो प्रिंसिपल भी फॉलो हुआ और डिवोटी को हर्ट भी नहीं किया. बोथ आर इम्पोर्टेंट. सो इट्स नॉट नेग्लेक्टिंग अदर जेंडर, माता जी के लिए प्रभु या प्रभु के लिए माता जी, बट इट हैज टू बी वेरी रिफाइंड डीलिंग सो दैट हम आश्रम की मर्यादा को भी रख सकें और हमारे वैष्णव संबंध भी मधुर रहे. ओके, नेक्स्ट पास टाइम. नम्र सीता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी? Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Passage 2. Dealing with Wealth and Comforts. Shivanand Sen and other devotees had filled a large earthen pot with the aromatic oil, and with great care Jagadananda Pandit brought it to Nilachal, Jagannath Puri. This oil was placed in the care of Govind, and Jagadanand requested him, "Please rub this oil on the body of the Lord." The Lord told Govind, "A sannyasi has no use for oil, especially perfumed oil such as this. Take it out immediately." When Govind informed Jagadanand Pandit of this message, Jagadanand remained silent, not saying even a word. When 10 days had passed, Govind again told Sri Chaitanya Mahaprabhu, "It is the desire of Jagadanand Pandit that your lordship accept the oil." When the Lord heard this, he angrily said, "Why not keep a masseur to massage me? Have I taken sannyas for such happiness? Accepting this oil would bring my ruination, and all of you would laugh. If someone passing on the road smelled this oil on my head, he would think me a Dari sannyasi, a tantric sannyasi who keeps women." Sri Chaitanya Mahaprabhu said to Jagdanand Pandit, "My dear Pandit, you have brought me some oil from Bengal, but since I am in the renounced order, I cannot accept it." Hare तो Krishna. कई बार एक्चुअली ऐसा नहीं है चैतन्य महाप्रभु उस कंफर्ट को स्वीकार करके उनका पतन हो जाता है या उनकी भक्ति कम हो जाती है, ऐसा नहीं है. बट समस्या ये है, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा बाकी लोग अनुसरण करते हैं और उनकी भक्ति के लिए ठीक नहीं. इसीलिए जब हम लीडरशिप पोजीशन में है या प्रचारक की स्थिति में है, हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी हर क्रिया को लोग देख रहे हैं. अगर हम बहुत ही ज्यादा ऑपुलेंट अपनी लाइफ जीते हैं या बहुत ही ज्यादा विषयों के बीच में रहते हैं, हो सकता है कोई बहुत उन्नत भक्त हो, वो अपनी चेतना को बचा भी सके, लेकिन बाकी लोग उसका अनुसरण करेंगे और वो अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. इसीलिए यथा योग्य जितना जरूरत है उतना स्वीकार किया जाए, नॉट अननेसली इंक्रीजिंग ऑपुलेंस. ओके, नेक्स्ट रोनी प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? Hare Krishna Prabhu Dhanapana. Dealing with wealth and comforts. When Gopinath Patanayak was lifted onto the क्या प्रभु जी ये चांग, Chang, all his सूली पे ना, servants. सूली पे चढ़ा दिया, सूली, Oh, सूली, सूली. when Gopinath Patnayak was lifted onto Chang, all his servants went to inform Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hearing about this, Sri Chaitanya Mahaprabhu was extremely sorry at heart, and in anger he chastised Gopinath Patnayak, saying, "Because Gopinath Patnaik is mad after sense gratification, he acts as a government servant, but spends the government's revenue for various sinful activities. The revenue of the government is more sacred than the property of a Brahman. One who misappropriates the government's money and uses it for sense gratification is most sinful. One who serves the government but misappropriates the government's revenue is liable to be punished by the king. This is the verdict of all revealed scriptures. The king wanted his revenue paid and did not want to enforce punishment. Therefore, the king is certainly very religious, but Gopinath Patnaik is a great cheat. He does not pay the revenue to the king, but he wants my help for ladies. This is a greatly sinful affair. I cannot tolerate it here. Therefore, I shall leave Jagannath Puri and go to Larnath, where I shall live peacefully and not hear about these affairs of materialistic people."
So what do we learn from this? Nishtha Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, as per my understanding, first is devotee should have an honest dealing. Money dealing should be fair. And second thing is everything is Krishna's energy. So we should use it very wisely. Yes, very nice. हम लोग भक्त बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि हमको फ्री लाइसेंस है कोई से भी नियम को तोड़ने का, और फिर बाद में भगवान तो हमारी रक्षा कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। ब्रजवासियों का जो फेथ था भगवान के ऊपर, भगवान का काम बढ़ाने का नहीं था, भगवान का काम कम करने का था। उसी तरह हमारे गोस्वामी का भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा रानी छाया कर रही हैं और सनातन गोस्वामी आके देखते हैं तो उनको समझाते हैं कि देखो आपकी वजह से राधा रानी को कष्ट हो रहा है, तो आप कुटिया में रहोगे तो राधा रानी को कष्ट नहीं होगा, ये हमारी परंपरा का सिद्धांत है। उसी तरह ऐसा नहीं है कि हम अनफेयर डीलिंग्स करेंगे, हम सारे नियम तोड़ेंगे और फिर भगवान तो हमको बचा ही लेंगे। ऐसा करना वास्तव में सर्विस नहीं है, डिससर्विस है। तो एक वैष्णव को सारे नियमों का, सारे सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हमारा काम है भगवान की सेवा करना, ना उनसे सेवा लेना। तो यह चैतन्य महाप्रभु बहुत नाराज हो रहे हैं। ये गोपीनाथ पटनायक गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनका काम था सारा रेवेन्यू जितना भी कलेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट को जमा करना, लेकिन इन्हें पूरा जमा नहीं किया। और अब आप लोग आके मेरे पास प्रार्थना कर रहे हो कि मैं उनको बचा लूं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। महाप्रभु बहुत रोष में, बहुत गुस्से में आ गए। ओके, नेक्स्ट सौरभ प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए। And ants, Hare Krishna. Ants generally crawl about here and there and everywhere. But Ramachandran Puri, imagining faults, criticized Sri Chaitanya Mahaprabhu by alleging that there had been sweet meats in his room. After hearing his criticism, Sri Chaitanya Mahaprabhu was doubtful and apprehensive. Therefore, he called Govinda and instructed him as follows: "From today on it will be a rule that I shall accept only 1/4 of a pot of Lord Jagannath's prasadam and 5 gandas worth of vegetables. If you bring any more than this, you will not see me here anymore." Sri Chaitanya Mahaprabhu ate only half of the rice and vegetables, and whatever remained was taken by Govinda. Thus, both Sri Chaitanya Mahaprabhu and Govinda ate only half of the food they needed. Because of this, all the other devotees gave up eating. When devotees complained about Ramachandra Puri, Chaitanya Mahaprabhu replied, "Why are all of you angry at Ramachandra Puri? He is expounding the natural principles of sannyas life. Why are you accusing him? For a sannyasi to indulge in satisfying the tongue is a great offense. The duty of a sannyasi is to eat only as much as needed to keep body and soul together. If one's spiritual master rejects him, one becomes so fallen that he, like Ramachandra Prabhu, commits offense even to the Supreme Personality of Godhead. Sri Chaitanya Mahaprabhu did not consider the offenses of this Ramachandra Puri, for the Lord considered him his spiritual master. However, his character instructed everyone about the result of offending the spiritual master." So what do we learn from this pastime? क्या जी, सीखते हैं हम? So one thing is that as a devotee, we should take in the material form also. We should take whatever is needed for a body rather than doing the sense gratification. So So Chaitanya Mahaprabhu was doing sense gratification. no, but Prabhuji, Chaitanya Mahaprabhu told to everyone that we should take as much as only as needed to keep a body and soul together. Yeah, actually वो लोग तो उतना ही ले रहे थे. Here some other teaching is there. और कोई बात? Hare Krishna Prabhuji, Prabhuji, can we say that we should not be judgmental just by saying the things, just like Sri Yes. Ramachandra Puri? Ramchandra Puri was not even judgmental, he was criticizing. मतलब जजमेंटल होने में भी स्कोप होता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है कि गलत है, मेरे अनुसार ऐसा है, बट रामचंद्र पुरी तो डिसाइड ही करके गए थे कि ये गलत है। अब मैं मौका ढूंढता हूँ किस चीज पे मैं क्रिटिसाइज करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट तो पहले ही आउट है कि चैतन्य महाप्रभु गलत, दैट इज हिज मूड। यस निष्ठा माता जी।
Hare Krishna Prabhuji, we should be careful that we don't do Vaishnava aparadh Yeah. or Vaishnava offend. And like you told us in the last class also, that we should not criticize any ashram. So, Yes, we should never criticize any devotee based on externals. That is the teaching. Yes, Namrasita Mataji. Vijay, what I understand is that in spite of harsh words from his spiritual master, Chaitanya Mahaprabhu, he followed his instructions. So this is what I understand Actually, that. as हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, devotee cannot have 2 lives, 3 lives, 4 lives. Devotee has single life. तो जो हैबिट्स आप नॉर्मल डे टू डे डीलिंग्स में बनाते हैं वही डिवोटीज के साथ आएंगी, वही हैबिट्स स्पिरिचुअल मास्टर के साथ होगी और वही हैबिट भगवान के साथ भी होगी. आप कितना ही ट्राई कर लीजिए, इट विल इवेंचुअली कम लाइक दैट. सो हमको लगता है कि अरे ठीक है, फैमिली मेंबर्स के लिए चलता है, झूठ वूठ ये सब सब चलता है. फिर डिवोटीज के साथ चलो ठीक है, थोड़ा सा और रिफाइन होंगे, फिर गुरु महाराज के सामने और रिफाइन होंगे. ऐसा नहीं होता है. डिवोटी का जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, इट कम्स आउट. जैसे रामचंद्रपुरी डिवोटीज को क्रिटिसाइज करते थे, फिर अपने गुरु को भी क्रिटिसाइज करने लगे और फिर अंततः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को भी क्रिटिसाइज करते रहे. सो दैट हैबिट नेवर लेफ्ट हिम. इसीलिए हमारी जो डीलिंग्स हो वो इतनी रिफाइन हो जो हर लेवल पर हमारे वैष्णव सिद्धांत की रक्षा कर सके. सो दिस वाज फ्रॉम लास्ट सेशन. टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये टॉपिक बहुत विस्तार से चर्चा किया जा सकता है, बट हम बड़े संक्षिप्त में करने वाले हैं. रोल ऑफ टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस इन वैष्णव सदाचार. सीख तो हम बहुत जल्दी जाते हैं वैष्णव सदाचार के प्रिंसिपल्स या कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी, और हमारा आंदोलन भी प्रचारकों का आंदोलन है, तो हमारे पास हर पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ बोलने के लिए तैयार रहता है. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे सिद्धांत हैं उनको हम समय काल पात्र के हिसाब से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे. जैसे मेरे निजी जीवन का अनुभव है, हम लोग वृंदावन गए थे, बहुत पहले की बात है, और सभी कॉलेज स्टूडेंट्स थे. तो एक भक्त को काफी भी बुखार हुआ था और बाकी सारे भक्त परिक्रमा पे जा रहे थे, वो भक्त बुखार में डला था. तो उसी का एक बैचमेट आके उसको बोलता है, अरे प्रभु जी वृंदावन आए हैं, चलिए आप तो, और अगर ये शरीर परिक्रमा करते करते छूट जाए तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है. जीवन की सफलता इससे बड़ी क्या है. एक्चुअली वाक्य सुनने में बड़ा अच्छा लग सकता है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द टाइम. वो समय नहीं है उस चीज को बोलने के लिए. हम लोग हमारे आचार्यों को देखते हैं कितना केयरफुल रहते थे, वो कब कौन सी चीज बोलनी है. दे न्यू हाउ टू प्रेजेंट अवर टाइमलेस फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन. जैसे प्रभुपाद को पूछा गया कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, अब प्रभुपाद बता सकते थे, बहुत सारी डेफिनेशंस दे सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने देखा मेरी ऑडियंस कौन है, हिप्पीज हैं. तो प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स ए रूम फुल ऑफ LSD. तब उनको समझ में आ रहे हुआ. अब प्रभुपाद उनको बोलते हैं आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, तो शायद उनको समझ में नहीं आता कि आनंद का सागर कैसा होता है, बट LSD का उनको एक्सपीरियंस था. तो प्रभुपाद ने बोला रूम फुल ऑफ LSD, दे अंडरस्टूड. एंड उसमें ही प्रभुपाद ने जोड़ा ऐसा LSD का नशा है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू विल नेवर कम डाउन. क्योंकि इनको प्रॉब्लम यही होती थी, ड्रग्स लेते थे, अगले दिन फिर हैंगओवर होता था. प्रभुपाद उनको एग्जांपल दे रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, वंस यू विल गो अप यू विल नेवर कम डाउन. तब उनको समझ में आया हाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है. ऐसी एक और फेमस एग्जांपल है श्रील प्रभुपाद का. प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जाते थे और सामने से जो लोग आते थे उनको गुड मॉर्निंग बोलते. तो भक्त लोग सोचते प्रभुपाद गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं. एक आध दिन बाद देखा वो लोग प्रभुपाद को मिलके अपनी तरफ से हरे कृष्णा बोल रहे हैं. तो प्रभुपाद का गुड मॉर्निंग बोलना उनके साथ रिलेशन बनाना था, और फिर प्रति उत्तर में वो लोग हरे कृष्णा बोलना सीख गए. इसीलिए हमको समझना है कि इंस्ट्रक्शंस को देना भी समय काल पात्र के हिसाब से हमको देखना है. गौरांग प्रभु एक और बहुत फेमस स्टोरी सुनाते हैं कई बार. गौर गोविंद महाराज ने प्रभुपाद को पत्र लिखा कि प्रभुपाद मुझे समय नहीं मिल पा रहा है ट्रांसलेशन करने का. तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं
कि ट्रांसलेशन का समय तुम्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो गौर गोविंद महाराज ने बोला कि प्रभुपाद एक्चुअली मैनेजमेंट का इतना सेवा रहती है यहाँ भुवनेश्वर में कि मैं ट्रांसलेशन कब करूँ? तो प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है, मैं एक भक्त को भेजता हूँ जो मैनेजमेंट संभालेगा, तुम ट्रांसलेशन करना, क्योंकि ट्रांसलेशन हर कोई नहीं कर सकता, मैनेजमेंट तो हम किसी को भी लगा सकते हैं। तो गौर गोविंद महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। प्रभुपाद ने एक भक्त को बुलाया। प्रभुपाद ने बोला कि तुमको यहीं रखना है भुवनेश्वर में। तो भक्त बोला प्रभुपाद मेरी तो टिकट बनी हुई है न्यूयॉर्क की, मेरे को तो न्यूयॉर्क जाना है। तो प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, टिकट कैंसिल कर दो। और बोले अब मैं क्या बोलूं? तो उसने नेक्स्ट बोला प्रभुपाद एक्चुअली ना इंडिया का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं करता है, इसलिए मैं ज्यादा समय यहाँ रह नहीं सकता। प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए सूट नहीं करता क्योंकि तुम ज्यादा समय नहीं रहते, ज्यादा समय रहोगे तो क्लाइमेट सूट करने लगेगा, तो तुम्हें रुकना चाहिए। फिर उसने तीसरा वो डाला रीजन, उसने बोला प्रभुपाद एक्चुअली यहाँ मैं कुछ खाता हूँ ना, मैं बार बार बीमार पड़ जाता हूँ। प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, मैं लिस्ट बना के दूंगा तुमको, क्या क्या खाने से कोई समस्या नहीं होगी, केवल वो खाना, वो लिस्ट के अलावा कुछ मत खाना। वो तो बड़ा परेशान, अब क्या करूं, मेरे को तो जाना है। फिर बोला प्रभुपाद एक्चुअली अमेरिका में ना मेरे लिए एक सर्विस सेट की हुई है, वहाँ स्पेशल डिपार्टमेंट खोला है और वो मुझे ही जाके संभालना है। प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, मैं वहाँ के जीबीसी को लिख दूंगा, दूसरा कोई डिवोटी वहाँ अपॉइंट कर देंगे। उसने फिर दूसरा डाला, उसने बोला प्रभुपाद एक्चुअली इंडिया के जीबीसी से मेरी बनती नहीं है। प्रभुपाद ने बोला आज ही मैं इंडिया का जीबीसी चेंज कर रहा हूँ, मैं इंडिया का जीबीसी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन तुमको यहाँ सेवा करना। अब उसने एकदम हुकुम का इक्का डाला, बोला प्रभुपाद एक्चुअली भारत में मेरी 16 माला नहीं होती। और सोचा अब 16 माला के आगे तो प्रभुपाद क्या ही बोलेंगे। प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, 16 माला मत करो लेकिन सेवा करो, जो मैंने बोला है वो सेवा करो। अब आगे वो क्या बोलता है? एक्चुअली प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का अगर कोई लास्ट पार्ट उठाए केवल इस पूरे पास टाइम का, तो वो अर्थ का अनर्थ कर देगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए टाइम प्लेस के हिसाब से प्रभुपाद ने उसको बोला। और प्रभुपाद जानते भी थे कि वो 16 माला तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन एक तर्क की बात चल रही है जहां प्रभुपाद ने बोला ठीक है 16 माला मत करो लेकिन सेवा करो। तो इसीलिए वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि इवन प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस जो कि कई लेटर्स में हमको मिलते हैं, प्रभुपाद बुक्स आर एब्सोल्यूट, बट कई प्रभुपाद के पास टाइम्स या प्रभुपाद के लेटर्स या इवन प्रभुपाद कभी लेक्चर्स भी एक स्पेसिफिक क्राउड के लिए, और वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से प्रभुपाद ने दिए। तो एक प्रचारक को इन 4 बातों का ध्यान बहुत गंभीरता से रखना चाहिए। सबसे पहला, कृष्ण भावनामृत का प्रचार ऐसा हो कि जिन भक्तों को हम प्रचार कर रहे हैं या जिस समुदाय को हम प्रचार कर रहे हैं उनकी भावनाओं को हम ठेस ना पहुंचे। अगर ठेस पहुंच रही है इसका मतलब वो उस स्तर तक आए नहीं है जो स्तर का आप प्रचार उनको कर रहे हैं। अभी उनको और डाइल्यूटेड, या डाइल्यूटेड नहीं बोलना चाहिए, और बेसिक ग्रेजुअल प्रीचिंग की जरूरत है। आइदर वी आर गोइंग टू फास्ट और एल्स दैट पर्सन इज वेरी लो इन हिज लेवल टू डाइजेस्ट व्हाट वी आर गिविंग हिम। तो उस हिसाब से हमको ये मेक श्योर करना है दैट सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल शुड नॉट बी हर्ट। दूसरा पॉइंट, हर समुदाय के हिसाब से, हर क्षेत्र के हिसाब से कृष्ण भावनामृत की प्रेजेंटेशन थोड़ी बदल जाती है। और हम लोग भी प्रचार पे जाते हैं, हम लोग देखते हैं बंगाल में प्रचार का स्टाइल अलग है, उड़ीसा में थोड़ा अलग है, फिर हम लोग इधर सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में आते हैं, इधर थोड़ा अलग है। फिर यही आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो फिर श्री संप्रदाय इत्यादि का थोड़ा इन्फ्लुएंस है, वहां प्रचार का स्टाइल थोड़ा अलग है। वेस्ट में जाएंगे तो वहां प्रचार का स्टाइल एकदम ही अलग है। जैसे यूके में पांडव सेना प्रीचिंग होती है, वहां के वीडियोस हमने यहाँ उज्जैन की पांडव सेना को दिखाया तो वो लोग एकदम विस्मित रह गए, क्योंकि वहां का प्रीचिंग स्टाइल एकदम ही अलग है। वहाँ बॉयज गर्ल्स सब एक साथ प्रचार करते हैं, वहां का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। तो पैकेजिंग हमारे मैसेज की अलग हो सकती है एज पर द गिवन सिचुएशन, लेकिन सिद्धांत परंपरा का एज इट इज जाना चाहिए। थर्ड, अच्छा मैनेजमेंट क्या है? अच्छा मैनेजमेंट यही है कि कैसे हमारे सिद्धांतों को इंटैक्ट रखते हुए हम प्रचार को, आंदोलन को, मूवमेंट को, मंदिर को आगे बढ़ाएं, ना कि हमारा प्रचार बढ़े और पीछे सिद्धांत खत्म होते चले जाएं। जैसे हमने पिछली बार इसको टच किया था ब्रीफली कि लाइफ मेंबर्स बनाने के लिए कई बार झूठ बोल देते हैं या डोनेशन कलेक्शन करने के लिए कुछ ओवर प्रॉमिस कर देते हैं, ये सब नहीं। यस, वी हैव टू एडजस्ट एज पर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रिंसिपल्स। और इसलिए चौथा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने बोला है प्योरिटी इज फोर्स, नॉट पैकेजिंग इज फोर्स। सो पैकेजिंग इज जस्ट
क्योंकि हमको अपनी प्यूरिटी का मैसेज वहां तक पहुंचाना है, बट हमारा प्रचार शुद्ध होना चाहिए। हमारे प्रचार में सामान्यता सब कुछ बेस्ट है, हमारे पास कीर्तन बेस्ट है, फिलॉसफी हाईएस्ट है, वैष्णव समुदाय का जो प्रेम का संबंध होते हैं वो बेस्ट है, टेम्पल्स बेस्ट हैं, डीटीज है, महामंत्र है, भागवतम है जो कि अमल पुराण है, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, हमारी सेंसिटिविटी कभी कम होती है, ये प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आपने किसी को एकदम एकदम सुपर से सुपर अल्फेंसो मैंगो का अमरस बना के दिया, वो अल्फेंसो मैंगो का अमरस पी रहा है और फिर पीछे से आपने एक पिन चुबा दी, तो उसका ध्यान कितने ही अच्छा अमरस हो उससे हटके पिन पे चला जाएगा। अब आप बोलेंगे अरे पिन पे क्यों ध्यान दे रहे हो, पिन तो इतनी सी है, तुमको इतना बड़ा कटोरा दिया अमरस का, उस पर ध्यान नहीं रहेगा, उसका ध्यान पिन पे चला जाएगा। उसी तरह से एवरीथिंग इज बेस्ट, अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लाइक अल्फेंसो मैंगो अमरस, बट हमारी जो लेस सेंसिटिविटी है, इनसेंसिटिविटी है, वो पिन प्रिक जैसे सब बिगाड़ देती है। जैसे मैं जब नया नया मंदिर में ज्वाइन किया था और हम लोग मायापुर में थे गुरु महाराज के साथ, तो मेरी फैमिली मुझे वापस लेने के लिए आई थी मायापुर में, और अच्छी खासी टीम आई थी, मदर फादर, मेरी सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ के पेरेंट्स, फिर मेरे फादर के एक एकदम चाइल्डहुड फ्रेंड, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, ऐसे मतलब कुछ 1 दर्जन लोग आए थे सब मिलके। तो वहां पर मायापुर में आए और गुरु महाराज ने बोला था उनका अच्छे से ध्यान रखने के लिए, तो हम लोगों ने बहुत सारा प्रसाद का आइटम्स अरेंज किए थे, उनका बढ़िया रूम वगैरह सब अरेंज किया, और वो लोग गुरु महाराज के क्वार्टर्स में ऊपर आए। अब जैसे ही आए, एक डिवोटी तुरंत अंदर चले गए, उनको लग रहा था कि वो समझाएंगे उनको, और वो पॉइंट ये बोल रहे थे मेरी फैमिली को कि आपको पता है एक फ्लाइट का टिकट कितना महंगा होता है, आपका लड़का जो है ना वो फ्लाइट में बैठ के घूम रहा है, इसीलिए आपको उसको मंदिर में रहने देना चाहिए। अब ये बात सुन के तो पेरेंट्स और नाराज हो गए, क्योंकि वो 12 के 12 लोग फ्लाइट में बैठ के तो मायापुर आए थे, वो तो और उनका दिमाग खराब हो गया। इतने में एक जो मेरी जो सिस्टर की मदर इन लॉ थी, वो साईं बाबा की फॉलोअर थी, तो एक डिवोटी जो कि बहुत ही सीनियर थे, वो अंदर अंदर एंटर हुए, बोले साईं बाबा, फिर उन्होंने हिट करना शुरू किया कैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और साईं बाबा के सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने खंडन करना शुरू किया। इससे फैमिली इतनी उखड़ गई, इतनी उखड़ गई कि वो लोग वहां से उठ के जाने लगे बिना गुरु महाराज को मिले। तो क्या हुआ, फिलॉसफी गलत बोली? नहीं, फिलॉसफी तो सही बोली, लेकिन टाइम नहीं समझा कि भाई अभी वो व्यक्ति आया है अपने बच्चे को वापस लाने के लिए, अभी उसको बहला फुसला के शांत करना है, ना कि उसको उसी दिन में एक ही दिन में भक्त बनाना है। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। तो हम जो कुछ भी उस इनसेंसिटिव नेचर के बाद देंगे, वो कुछ भी अंदर जाने वाला नहीं है व्यक्ति के। इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हाउ वी प्रेजेंट अवर फिलॉसफी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अनुपमा माता जी पढ़िए। Hare Krishna, Prabhuji. I have seen the agenda of your president's meeting. This is nice. One thing should be followed. However, as your countrymen are more or less independent, spirited, and lovers of democracy, so everything should be done very carefully so that their sentiments may not be hurt. According to Sanskrit moral principles, everything has to be acted, taking consideration of the place, audience, and time. As far as possible, the centers should act freely, but conjointly. They must look forward to the common development. That should be the principle. तो हर स्थान के भक्तों का स्वभाव थोड़ा समझ के हमको बात करना होती है। जैसे हम भारत के मंदिरों में तो हम सेवा के लिए डायरेक्ट बोल देते हैं, प्रभु जी आपकी सेवा ये, आपकी सेवा ये, आपकी सेवा, आपकी सेवा ये। वेस्ट में ऐसा नहीं होता, मैंने पर्सनली देखा। मैं अटलांटा में था, वहाँ के प्रेसिडेंट भक्तों के पास आके ऐसे पूछ रहे थे, आज आपको कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? भक्त बोलता है वेरी नाइस। आर यू ओके? यस यस। वुड यू लाइक टू कम ऑन संकीर्तन? हम लोग प्लान कर रहे हैं संकीर्तन में, आप आना चाहोगे? बोलता है या आई विल कम। दूसरा बोला आई हैव सम वर्क, आई वोंट कम। तो प्रेसिडेंट ने उसको ये भी नहीं बोला कि भाई तेरा काम तू बाद में कर लेना, 1 घंटे संकीर्तन के लिए चल, नहीं। बिकॉज कल्चर देयर इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो हमको अपने कल्चर को, अपने आसपास के समुदाय कल्चर को समझना होगा। और गौरांग प्रभु तो यहाँ तक बोल रहे थे, एक्चुअली इसी टॉपिक पे लेक्चर दे रहे थे,
गौरांग प्रभु बोल रहे थे एक्चुअली आजकल इस्कॉन में शिष्य ज्वाइन ही कहाँ कर रहे हैं, गुरु ही ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक वो ज्वाइन करता है उसके सोशल मीडिया पे हैं 1 लाख फॉलोअर्स, उसकी वीडियोस लोग देख रहे हैं, उसकी रील्स लोग देख रहे हैं, उसने प्रचार खड़ा कर रखा है। तो अभी आजकल सब गुरु ही ज्वाइन कर रहे हैं, डिसाइपल कोई ज्वाइन कर ही नहीं रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि हमारा समुदाय भी एक साथ आगे बढ़े और हम लोग एक दूसरे के डीलिंग्स ईगो फ्रेंडली रखें। नेक्स्ट, मोक्ष रूपी प्रभु। Yeah, Hare Krishna Prabhu, Dandava Pranams. Letter to Shivananda, 23rd January 1969. It is important that we preach the message of Krishna consciousness exactly as we have heard it from our spiritual master. But there are chances due to time, circumstances, and trainees. The spirit of disciplic succession may not be changed, but there may be adjustments to suit these special circumstances. जैसे हम परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर बुक पढ़ते हैं, शिला प्रभुपाद इज प्रीचिंग टू दैट यंग बॉय बॉब कॉइन, और प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं कि देखो सब कुछ भगवान की कृपा से आता है, तो जब तुम भोजन करते हो भोजन के पहले जस्ट इतना बोलो थैंक यू कृष्ण, बस इतना बोल के भोजन स्वीकार करो। अब ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं महाप्रसाद गोविंद मत करो कि ऑफरिंग मत करो, बट प्रभुपाद को पता है उसका स्तर उतना है, और अगर वो इतना फॉलो करेगा धीरे 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 उसी कृष्ण चेतना वृद्धि होगी, और वो हुआ भी। बाद में जाके उन्होंने श्रील प्रभुपाद से दीक्षा ली, उनका नाम ब्रह्म तीर्थ प्रभु हुआ। आज वो प्रभुपाद की प्रचार के लिए बहुत अच्छा एक केंद्र चला रहे हैं फ्लोरिडा में। तो कहने का तात्पर्य एक स्तर से व्यक्ति को हमको ऊपर उठाना है, स्पिरिट ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन सेम रहे, और जो भी एडजस्टमेंट हमको करना पड़े उसको परोसने के लिए हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नित्य हरिप्रिया माता जी पढ़िए। अनम्यूट किया है माता जी? Hare Krishna. यस। Letter to Rupanuga, August 8, 1969. The students are taught by the spiritual master or the teacher, and the students themselves go from door to door for begging alms. And because everyone's son is in the ashram, nobody declines to give the alms, so there is no financial difficulty at all. But I do not know what to do in your country. There are so many laws. We have to adjust things to the circumstances. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि पहले जैसे ये इशू आया था कि मंदिर कैसे चलाया जाए, हमेशा क्राइसिस रहती है लक्ष्मी की। प्रभुपाद बता रहे हैं पहले जमाने में आश्रम होता था तो सारे शिष्य लोग जाते थे, भिक्षा करके लाते थे, कोई मैनेजमेंट इतना होता नहीं था। लेकिन अभी ये लॉज नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अभी उसमें एडजस्टमेंट करना है। तो ठीक है, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहां से जो डोनेशन आता है उससे मंदिर चलाते हैं, या हमने गोविंदास रेस्टोरेंट खोले हैं, या अलग अलग वेंचर्स हैं। पहले स्पिरिचुअल स्काई करके प्रभुपाद ने शुरू किया था, जिधर इंसेंस स्टिक्स और बाकी इंडियन आइटम्स बेचते थे भक्त लोग। तो ठीक है, देयर वाज सम एडजस्टमेंट, बट दैट एडजस्टमेंट केप्ट द प्रिंसिपल इंटैक्ट कि डिसाइपल्स जाते हैं, कलेक्शन करके लेके आते हैं, उससे गुरु का आश्रम चलता है। प्रिंसिपल इज सेम, बट उसी आधार पर डिटेल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। जैसे कि हम लोग जब एयरपोर्ट्स में गुरु महाराज को प्रणाम करते थे, गुरु महाराज फॉरेन में बहुत नाराज हो जाते थे, बोलते थे कि नहीं, यहाँ पर क्योंकि दीज कंट्रीज हैव गॉन थ्रू स्लेवरी फॉर ईयर्स, और उनको लगता है कि इस्कॉन इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन टू इम्पोज स्लेवरी, तो इसलिए प्रणाम नहीं करने देते। कई बार तो हमको वेस्टर्न क्लोथ्स में ले जाते थे ट्रैवलिंग पे, क्योंकि इमिग्रेशन वगैरह पे दे आर वेरी स्केप्टिकल। तो प्रिंसिपल सेम है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करना है, भ्रमण करना है, सब कुछ करना है, बट डिटेल्स में देयर कैन बी एडजस्टमेंट। अमर निताई प्रभु। Hare Krishna. Letter to Upendra, June 24, 1970. We must stick to our Krishna consciousness business in all circumstances. This determination will make us successful, although according to the Vedic system, there is a restriction that the boys and girls should not mix freely mix. The brahmacharis are strictly prohibited to talk with young women, but in the Western countries, this rule is not valid. As such, we have to accept both boys and girls in the same standard.
But if each of us follow the regulative principle and chanting of the mantras, hardly there will be any chance for sect indulgence. So we have to be little careful about it, and Krishna will help us. तो ऐसा नहीं है, जो रूल्स बनाए गए हैं एकदम उसका हमको लकीर के फकीर बनना है, और चाहे उधर सिचुएशन में जो भी हो वी हैव टू फॉलो इट, नॉट लाइक दैट. मेनली वी हैव टू गेट द एसेंस ऑफ इट. जैसे एक प्रचलित कथा भी है, आप लोगों ने भी यूज की होगी प्रीचिंग में. दो ब्रह्मचारी एक बार जा रहे थे, एक नदी उनको क्रॉस करनी रहती है, और उस नदी के पास एक महिला बैठी होती है. वो रिक्वेस्ट करती है कि मैं ये नदी क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ, आप में से कोई मेरी मदद कर सकते हैं. तो एक ब्रह्मचारी उस महिला का हाथ पकड़ के उसको मदद करता है नदी क्रॉस कराने में. अब वो महिला को छोड़ दिया, दोनों आगे बढ़ गए. 2-4 किलोमीटर चलने के बाद जो दूसरा ब्रह्मचारी था वो एकदम से बर्स्ट होता है, बोलता है तुम कैसे व्यक्ति हो, तुमने उस महिला का हाथ पकड़ के उसको नदी क्रॉस कराई, कैसे तुम कर सकते हो, ब्रह्मचारी होके भी तुम कैसे कर सकते हो. तो ये पहले ब्रह्मचारी ने बोला, देखो मैंने तो उस महिला को हेल्प की, आई जस्ट कैरीड दैट लेडी उस नदी को पार करने तक, बट पिछले 4 किलोमीटर से यू आर कैरिंग दैट लेडी इन योर हेड, आप अपने दिमाग में उसको लेके चल रहे हो. सो बेसिकली माया इज नॉट इन फीमेल और मेल्स, माया इज इन आवर हेड. और अगर हम उसका इलाज कर ले तो फिर वो प्रिंसिपल इज वैलिड. इसलिए हम लोग सब मंदिर में एक साथ सेवा करते हैं. देन ऑल्सो द प्रिंसिपल इज दिस, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, नॉट वुमेन नॉट मेन. ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? सत्य प्रभु पढ़िए. Hare Krishna, Guruji, Dhanvat Pranam. So the new procedure, the procedure you are instituting on Sankirtana party are very encouraging to me. The opportunities for expanding the Sankirtan movement are unlimited. We should tax our brains so to what is the best way to present Krishna consciousness to particular people at a particular time and place. I have always thought that in LA, Los Angeles, there should be at least 10 Sankirtana parties going out simultaneously, and as you have indicated, such places as Long Beach and other areas can each have their own Krishna consciousness center. अभी एक डिबेट हमेशा रहता है, तो फिर हमको कौन सी टीम में होना है, कंजर्वेटिव होना है कि लिबरल होना है? ये डिबेट हर संस्था में होता है, कोई नई चीज नहीं है. दिस इज ऑलवेज ए कांस्टेंट डिस्कशन. आइदर वी हैव टू बी कंजर्वेटिव और लिबरल. कंजर्वेटिव मतलब सिद्धांत के पक्के, एकदम सिद्धांत से 1 इंच नहीं हिलेंगे. और लिबरल मतलब ठीक है, आंदोलन का विस्तार करना है, एडजस्टमेंट करना चाहिए, नए समय के साथ ढलना चाहिए, ये लिबरल्स होते हैं. हर संस्था में ये दोनों कैटेगरी पाई जाती है. हमको कौन सी पार्टी को वोट देना है? किस किस को लगता है कि हमको कंजर्वेटिव होना चाहिए? We have to maintain the balance between the both. नहीं, अभी क्वेश्चन है कंजर्वेटिव किस किस को होना चाहिए. अभी क्वेश्चन ये है कि लिबरल किस किस को होना चाहिए. लिबरल कौन कौन को लगता है लिबरल होना चाहिए? प्रचार बढ़ाना है, वी हैव टू बी एकोमोडेटिव, लिबरल. अभी क्या हम सब ने इतने इस्कॉन के कोर्सेज कर लिए, हमको पता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर दोनों ही होता है. सो इट्स बोथ. जैसा अमर नेताई प्रभु बोल रहे थे, वी हैव टू कीप बैलेंस. यस मीनाक्षी माता जी. Correct. यस माता जी. You can speak, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. यस भुवन मोहिनी माता जी. प्रभुजी, कंजर्वेटिव हमें तब होना है जब अपनी बात आती है, लाइक जब अपने लिए हमें कंजर्वेटिव होना है, बट जब दूसरों के लिए है तो थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा प्रचार यस, के लिए. वेरी नाइस पॉइंट. ये भी हमने चर्चा किया था, स्ट्रिक्ट फॉर वन सेल्फ एंड एकोमोडेटिंग फॉर अदर्स. ये तो है ही, लेकिन फिर भी जैसे आप प्रचार कर रहे हो, अब प्रचार कर रहे हो, आपके ग्रुप के कुछ लोग बोलते हैं कि माता जी 4 नियम में से 3 नियम चलेंगे, 1 नहीं चल पाएगा, तो फिर लिबरल होना है कि कंजर्वेटिव होना है?
तो प्रिंसिपल्स नहीं उसमें वो होने चाहिए, प्रिंसिपल्स तो हमें फॉलो करने हैं, हाँ, मतलब प्रिंसिपल्स उसमें वो नहीं होने चाहिए, अब उनकी वो वैल्यू नहीं प्रिंसिपल को घटानी है। कैसे फॉलो कराना है इसमें आप लिबरल हो सकते हो, कि भाई उसको हम्म आप 6 महीने में उस लेवल तक लेके आते हो, कि 2 महीने में लेके आते हो, कि 2 दिन में लेके आते हो, उसमें आप लिबरल हो सकते हो। इसलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप ये कंजर्वेटिव लिबरल को याद रख सकते हो। जैसे हम पेड़ देखते हैं, पेड़ की रूट्स कंजर्वेटिव है, वो अपने स्थान पे अडिग है, और उसकी जो ब्रांचेस है ना वो फार एंड वाइड जाती हैं, वो लिबरल है। तो हमारा प्रचार भी ऐसा होना चाहिए, हमारे प्रिंसिपल्स शुड बी डीपली रूटेड, कि हाँ ये तो मुझे कराना ही है, भक्त तो मुझे वही बनाना है जो प्रभुपाद की अपेक्षा थी, लेकिन अब उस स्तर तक मैं कैसे लाऊं, वो डिटेल्स चेंज हो सकती है। जैसे हम लोग जब पुणे में भी प्रीचिंग करते थे, बहुत सारे तरीके थे, कॉलेज प्रीचिंग थी, टेम्पल कैंपस प्रीचिंग थी, टीनेज वॉइस प्रीचिंग थी, फिर कल्टीवेशन ऑफ डोनर्स प्रीचिंग थी, डोनर डिनर्स होते थे, बहुत सारे अलग अलग वेंचर्स थे। लेकिन उसका अंत रिजल्ट क्या है? फलेन परिचायते, उसका अंत रिजल्ट है कि उसको अल्टीमेटली हमको प्रभुपाद के सिद्धांतों वाला 4 नियम 16 माला वाला भक्त बनाना है अंत में। तो अब उसमें टाइम कितना भी ले लिया जाए, उस व्यक्ति की स्पीड के हिसाब से, हमारे स्पीड के हिसाब से, बट अंततः रिजल्ट वो हमारे प्रिंसिपल से मैच होना चाहिए। सो दैट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। हरे कृष्ण प्रभु। तो यदि हमें लगता है कि कोई डिवोटी है जो हमारे क्लासेस में आ रहा है, और लगता है वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेगा और 16 माला नहीं करेगा, तो उसे इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। देखिए, अगर एनर्जी टाइम लिमिटेड है, सो दैट इज अ वाइस आइडिया, क्योंकि जहां एनर्जी और टाइम लिमिटेड है वहां पर प्रिंसिपल काम करता है, डोंट क्रिएट इंटरेस्ट, कैच द इंटरेस्टेड। ये प्रिंसिपल काम करता है। हाँ, आपके पास टाइम असीमित है, एनर्जी है, लोग हैं बहुत सारे जिनको आप एंगेज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ठोक पीट के तो सब भक्त बनने ही है, वो तो भक्त तो सबको ही बनना है। लेकिन अगर टाइम सीमित है, एनर्जी सीमित है, तो फिर हमको ये थोड़ा सा भेद करना चाहिए कि भाई व्यक्ति थोड़ा सा अगर इंक्लाइंड है तो ये जल्दी भक्ति कर सकता है, थोड़ा सा उसमें हम डिस्क्रिशन कर सकते हैं। अगेन, किसकी कितनी सुकृति हमको नहीं मालूम, हो सकता है बाहर से व्यक्ति बड़ा पॉलिश सा हो, अंदर उसकी सुकृति जीरो हो, तो वो भक्ति करेगा नहीं। और दूसरा व्यक्ति बाहर से बड़ा नियम तोड़ने वाला हो लेकिन सुकृति उसकी है, वो तुरंत पिकअप भी कर लेता है, बैड हैबिट्स छोड़ सकता है। अब उसका कैलकुलेशन तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन जितना अपन बाह्य रूप से कर सकते हैं, जैसे इवन हम जब कॉलेज प्रीचिंग पे जाते थे, तो अब उसमें कई स्टूडेंट्स फर्स्ट सेशन में आते थे जो कि अलग अलग फेथ से होते हैं। जैसे कोई मुस्लिम भी आ सकते हैं, कोई क्रिश्चियंस भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो वन टाइम प्रोग्राम्स के टॉपिक्स होते हैं वो तो बड़े जेनरिक होते हैं, लाइक टाइम मैनेजमेंट या फिर पावर ऑफ हैबिट्स। तो उसको पढ़ के लगता नहीं है कि ये कुछ मतलब रिलीजियस होने वाला है, आगे जाके स्पिरिचुअल होने वाला है। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अब वो रजिस्टर भी कर जाते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते थे, हम उनका बैच अलग बनाते थे, और जो हमारी टारगेट ऑडियंस उनका बैच हम अलग बनाते थे। तो उन लोगों के लिए हम 2-3 सेशन करते थे, उसमें हमको समझ में आ जाता था, उनको भी समझ में आ जाता था, हमको भी समझ में आ जाता था। और जो हमारी टारगेट ऑडियंस है फिर उसमें हम एनर्जी देते थे, जो लंबे टाइम तक हम उनको आगे लेके जा सकते हैं। सो वी कैन डू अवर होमवर्क, बट अल्टीमेटली इट इज ऑन कृष्णा, विच जीवा हैज टू कैच भक्ति, इट्स अप टू हिज सुकृति ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? अष्टसखी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? Letter to Yogeshwara, June 12th, 1971. So we have to adjust things. Everything is important. Not that we have to do something at the expense of something else. I cannot say from here what is to be given or preference. That depends on your management capacity. कई बार जब हमको कोई सर्विस मिलती है, स्पेशली मैनेजरियल सर्विस या कोई प्रीचिंग समुदाय का लीडरशिप, तो टेंडेंसी ये होती है कि हम कुछ बड़ा करके दिखाएं। ये हर जीव के अंदर वो थोड़ा सा है, पैशन सबके अंदर। तो कुछ ना कुछ बड़ा तो करना ही है प्रभुपाद के आंदोलन के लिए, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ कोर प्रिंसिपल्स। डिवोटीज मस्ट सर्व, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर चैंटिंग, रीडिंग, सर्विंग, हियरिंग, ऑल दिस बेसिक प्रिंसिपल्स।
ये अगर इंटैक्ट नहीं है तो फिर अभी हम आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। स्ट्रेच जोन में होना है, ब्रेक जोन में नहीं होना है। तो इसीलिए मैनेजमेंट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल है फर्स्ट सेल्फ मैनेजमेंट। सेकंड इज पीपल मैनेजमेंट, फिर संबंधों का मैनेजमेंट, विश्व संबंधों का। एंड थर्ड इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। गाड़ी कहाँ खराब होती है? सेल्फ मैनेजमेंट पे ही पहले गाड़ी अटक जाती है। अब अपनी चैंटिंग रात में हो रही है, अपनी रीडिंग के पते नहीं है, और हम बात कर रहे हैं मीटिंग की कि कैसे हम फेस्टिवल बड़े से बड़ा बनाएं, कैसे हम सेंटर का एक्सपेंशन करें। इट विल नॉट वर्क। सो केपेबल मैनेजमेंट ये है कि हाँ, हमारा प्रचार आगे बढ़े, समुदाय आगे बढ़े, सेवा आगे बढ़े, बट नॉट ऑन द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द प्रिंसिपल्स एज इट इज रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट। कौन ने नहीं पढ़ा है अभी तक, पढ़ सकते हैं। I can read, Prabhuji. यस। Letter to Badri Narayan, Delhi, 18 November 1971. Regarding your proposal to accommodate more indoor engagements for Sankirtan and thus to avoid the severe cold of winter time is a nice proposal. And I am encouraged to hear that you are always thinking of how to improve the program of your St. Louis temple. We should always be thinking of how to spread this Sankirtan movement by applying our basic principles according to time and place. And I especially want that my students enter into the schools and colleges and present our Krishna philosophy and sell our books. So this is Prabhupada's instruction. Yes, our devotees should be engaged in such a way Sankirtan movement भी आगे बढ़े, and we are also intact in our Krishna conscious philosophy. एक और similar example from BTG. कोई पढ़ना चाहेंगे? Yes, पढ़िए। Letter to Yogeshwara, December 28, 1970. Please accept my blessings. I beg to acknowledge your letter of 17 December 1971, along with the copies of your advertising work, slides, and touch PPT. I am very pleased to see that foreign literature is being produced nicely under your enthusiastic supervision. Just try to increase more and more our output of such books and magazines in many languages. I don't think there is a need to divert your attention by producing advertising. I have seen your advertisement as shown to me by Shyam Sundar, and I think I think you have made the thing less important. This kind of ad is not good. It is not great. Our process is to show Krishna consciousness as it is, not as others want to see. By showing Casey in this way, you are making the thing less important. It is not that we should change to accommodate the public, but we should change the public to accommodate it. So we have to see कि on name of expansion ऐसा भी ना हो कि हमारी प्योरिटी लॉस्ट हो जाए। कई बार प्रीचिंग में ऐसा होता है ना, कई बार क्लास मिलती है तो फिर हम एग्जांपल्स ढूंढने लगते हैं कि चलो अब कहाँ से एग्जांपल मारूं, यहाँ से मारूं, वहां से मारूं। मेरे साथ ऐसा हो रहा था एक समय पर। आई वाज टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम हियर एंड देयर एंड आई गॉट ए ड्रीम। और उस ड्रीम में मैंने देखा कि एक योगा स्टूडियो है, और मैं वो योगा स्टूडियो में मतलब टेक्निक्स ऑफ योगा ऐसा कुछ बता रहा हूँ, और पीछे वाले गेट से गुरुमाज एंटर्ड। आई एम सीइंग इन ड्रीम एंड गुरुमाज इज चेस्टाइजिंग मी, व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू नॉट प्रीचिंग फ्रॉम भगवद गीता? So I got that dream. और मेरे साथ एक्चुअली उस टाइम पे ऐसे ही हो रहा था। आई वाज जस्ट गेटिंग एग्जांपल हियर एंड देन आई डिसाइडेड नहीं, Prabhupada examples, parampara examples, they are enough. Some examples here and there are good, but too much dilution is not good. क्लास में सबको मजा आएगा, सब लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी क्या क्लास क्या क्लास, but that content will not go inside. We are not entertainers. Krishna conscious preachers are not entertainers. We are preaching Krishna consciousness. The message of parampara should go in pure form. इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं बैक टू गॉड भगवत दर्शन पत्रिका के लिए कि कई भक्तों ने सुझाव दिए होंगे कि इसमें हम एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, वो डाल देते हैं, ज्यादा बिकेगी। प्रभुपाद बोले नो, वी हैव टू कीप द मैसेज प्योर। लास्ट एक एग्जांपल लेके आज समाप्त करेंगे। एनी डिवोटी जिसका रह गया हो, नहीं पढ़ा हो अभी तक?
Hare Krishna Prabhu, can I read? Yes, Prabhuji, पढ़िए. Hare Krishna. Purity and not the packaging is our core preaching strategy. Letter to Yogeshwara, December 28, 1971. Better you devote your full time to one thing only, not many things. That way your enthusiasm and talents will have big effect by being concentrated. Therefore, kindly concentrate for producing books and magazines in European languages, as many as possible, and make this your life work. These books are the best advertising. They are better than advertising. If we simply present Krishna consciousness in a serious and attractive way, without need to resort to fashionable slogans or tricks, that is sufficient. Our unique asset is our purity. No one anywhere can match it. That will be noticed eventually and appreciated as long as we do not diminish or neglect the highest standard of purity in performing our routine work. Not that we require to display or announce ourselves in very clever ways to get attention. No, our pure standard is enough. Let us stand on that basis. तो जो हमने अभी डिस्कस किया, basically yes, we have to be very open, we have to be very accommodating. सभी लोगों को हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंट्रोड्यूस करना है, सेंसिटिव रहना है. एट द सेम टाइम वी हैव टू रियलाइज प्यूरिटी इज फोर्स. जितना अच्छा प्रचारक अपनी साधना में होगा, जितना अच्छा उसका जप होगा, उतना ही उसका प्रचार इफेक्टिव होगा. बातें हम सेम कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो हृदय में शुद्धता नहीं रहेगी, हृदय को स्पर्श नहीं करेगी. तो अच्छा प्रचारक वही बन सकता है जो अच्छा भक्त हो. So we have to keep that also in mind. So we'll end here with a pastime of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Again, it is a case study. और इसका क्या करना है वो होमवर्क रहेगा, जो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा. बट एटलीस्ट ये पास टाइम पढ़ लेते हैं. सो कौन पढ़ेंगे? ओके. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस, नम्रता माता जी पढ़िए. Case study. Sri Chaitanya Mahaprabhu then embraced Sri Ramanand Rai very firmly. Indeed, both the master and the servant almost lost consciousness due to ecstatic love. The natural love for each other was awakened in them, both, and they embraced and fell to the ground. When the stereotyped ritualistic Brahmins, who were following the Vedic principles, saw this ecstatic manifestation of love, they were struck with wonder. All these Brahmins began to reflect as follows. The Brahmins thought, we can see that this sannyasi has a luster like the effulgence of Brahman. But how is that he is crying upon embracing a Shudra, a member of the fourth caste in the social order? They thought, this Ramanand Rai is the governor of Madras, a highly learned and grave person, a Mahapandit. But upon touching this sannyasi, he has become restless like a madman. While the Brahmins were thinking in this way about the activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Ramanand Rai, Sri Chaitanya Mahaprabhu saw those outsiders and restrained his transcendental emotions. फर्स्ट टाइम सबको समझ में आया? श्री चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर रामानंद राय को मिलते हैं, और दोनों एक दूसरे को जैसे ही मिलते हैं दोनों भाव में आ जाते हैं, क्रंदन करते हैं, अचेतन होके गिर जाते हैं, और जितने अष्टसाती विकार हम लोग पढ़ते हैं वो इनके अंदर दिखते हैं. पास में कुछ स्थानीय ब्राह्मण थे जो कि रामानंद राय के साथ आए थे. रामानंद राय जब स्नान करने भी जाते थे, क्योंकि गवर्नर थे, तो बड़े, और मद्रास तब केवल मद्रास सिटी नहीं था, वो पूरा दक्षिण भारत को मद्रास बहुत बड़ा क्षेत्र था. तो बड़े सारे ब्राह्मण उनके साथ जाया करते थे. तो वो ब्राह्मण बड़े कंफ्यूज हो गए. पहली बात तो इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल और एक सन्यासी को साथ में गले लग रहे हैं, और दूसरी तरफ से एक ब्राह्मण एक शूद्र को लग रहा है. तो बड़ा कंफ्यूजिंग था. चैतन्य महाप्रभु ने देखा वो ब्राह्मण पास में खड़े, अपने इमोशंस को, अपने भावों को संयमित कर लिया. ये पास टाइम है. अब हमको करना क्या है थोड़ा देख लेते हैं. निष्ठा माता जी पढ़िए.
Hare Krishna. Here we read that Sri Chaitanya Mahaprabhu is meeting his most intimate associate Ramananda Roy for the first time, and as a result, both go into raptures of ecstasy. We observe that even in such a situation of divine love, Lord Chaitanya is conscious of the place and people around and adjusts his conduct. We observe similar situations in current day. As devotees, we may have certain lingo, manners, etc. in our internal dealings which might appear aligned, all at times alienating to non-devotees. Considering the situation of your temple, yatra, community, share some examples specific to your temple or yatra or community, which might be perplexing or alienating to prospective visitors or devotees, and thus will require adjustment for the current time, place, and circumstances. समझ में आया? श्री चैतन्य महाप्रभु उस भाव स्थिति में भी ये समझ रहे थे कि ये ब्राह्मण लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इनके सामने ये सब नहीं करना चाहिए। रामानंद राय को बोले हम लोग रात में बैठ के कृष्ण कथा चर्चा करेंगे। तो महाप्रभु वाज सेंसिटिव टू द पीपल अराउंड कि भाई वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं हमारा क्या है। ऐसे ही कई बार हमारे प्रचार में नए लोग या जो भक्त नहीं है, वो लोग जो हमारी डीलिंग्स कई बार देखते हैं, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं जहां वो लोग हमारी कम्युनिटी के साथ मैच ही नहीं कर पाते। जैसे अभी कुछ समय पहले मुझे किसी ने वीडियो भेजा, वो बता रहे थे कि इस्कॉन में तो हस्बैंड भी वाइफ को माताजी बुलाते हैं। एक्चुअली ये सही है नहीं, लेकिन वो भक्त ने किसी ने उनके सामने बोल दिया होगा, वो नहीं समझ पाए, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, जो भी हुआ। अभी कहने का मतलब है हमको ऐसी सिचुएशंस आइडेंटिफाई करनी है हमारे अंदर मुख्यतः, और हमारी कम्युनिटी के अंदर इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। जिन सिचुएशंस को देख के, सुन के, एक्सपीरियंस करके बाहर वाले लोग बड़े जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, और हो सकता है उनको ऐसा भी लगे कि इस्कॉन तो मेरे लिए है ही नहीं। ऐसी सिचुएशंस को हमको आइडेंटिफाई करना है और अगली क्लास में आना है। हम उन सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे और कैसे प्रोबेबल उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो भी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इस क्लियर? इसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पास्ट टाइम तो आपको पता ही है, ओनली दिस पार्ट यू कैन टेक। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक बार जो आपने बोला कि ऐसी सिचुएशंस को हमें स्टडी करना है जिससे किसी को लगे कि ये इस्कॉन तो मेरे लिए मतलब जैसे मान लीजिए हम भक्त दो भक्त मिलके प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, है ना। अब आप आपके ऑफिस के बाहर खड़े हो, रोनी प्रभु वहां पहुंच गए, आपके सारे कलीग्स वहां पर हैं, और रोनी प्रभु ने मस्त अष्टांग दंडवत प्रणाम आपको वहां कर दिया। आपने भी कर दिया, क्योंकि अब रोनी प्रभु आए हैं तो आपने भी कर दिया। अभी साथ वाले लोगों को क्या लगेगा? विल दे बिकम अट्रैक्टेड टू अवर प्रोसेस, और विल दे बिकम रिबेलियस टू अवर प्रोसेस? हम लोग उनके सामने एलियन जैसे दिखेंगे, क्या होगा? सो वी हैव टू आइडेंटिफाई सिचुएशंस लाइक दिस इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमको उनको चर्चा करना है, एंड प्रोबेबल क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि वो सिचुएशन में वैष्णव सिद्धांत का भी पालन हो और बाहर के लोगों के लिए हम एलियन ना बन जाए। दैट वाज द होल क्रक्स ऑफ टुडेज टॉपिक, presenting Krishna consciousness as per time, place, circumstance. So that's what we have to identify. ठीक है? हरी हरी। Sorry for giving homework, but that's how, वो एक वीक का जो गैप है, नहीं तो वो आगे सब गायब होता जाएगा। So that's the reason there has to be some work. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी। हमें पता ही नहीं चलता कहाँ 1 घंटा चला जाता है। मैं हमेशा देखता हूँ बहुत जल्दी प्रभु जी क्लास खत्म कर रहे हैं। So they are so engaging and so interactive. So and also so practical for us to learn and apply. So thank you so much, Prabhuji. So all of us, we heartily thank Prabhuji for giving us his weekly time association to us. And we are looking forward to come to Ujjain. अभी तो पहले मायापुर में जा रहे हैं, पर मायापुर प्रभुजी नहीं होंगे, प्रभुजी Ujjain. So, but September we are all coming. Yes, so, Prabhuji's association and some seva also. So
from the bottom of our heart, we thank Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Krishna Kishore Prabhu ki jai, Jagat Guru Sri Prabhupada ki jai. Thank you, Prabhuji. Thank you so very much.